आवर चैनल। तो आज हम क्लास 6 का चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड जो है वो करेंगे। तो इसको हम बेसिकली 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी इन एनिमल्स। ठीक है? वी विल बी कवरिंग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एंड have a very detailed explanation for the same, right? Beginning with trees stand in the sun and give shade to others. Their fruits are also for others. Likewise, good people bear all hardships and bring welfare to others. They give to others whatever they have earned. So, this is the wise saying. Moving on to the chapter. It is a pleasant morning after yesterday's refreshing rain. Dr. Raghu and Maniram Chacha have been invited to the school by science teacher Madam Sulekha to facilitate an exciting nature walk. Dr. Raghu is a scientist at the nearby research laboratory and Maniram Chacha is an elderly person from a nearby community. Maniram Chacha is an expert in mimicking bird calls. He is also brilliant at identifying a variety of plants and animals. To prepare them for the nature walk, Dr. Raghu informs the students that the objective of this walk is to experience the beauty and variety of plants and animals in the nature. So this is basically a story where the children are going for a nature walk और वहां पर वो लोग डिस्कवर करेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं उनकी कितनी वेराइटी है. ठीक है. So they are curious in interacting and learn from them. The teacher advises the students to carry a notebook, a pen and a water bottle. As they walk, they begin exploring the plants and animals around them. Dr. Raghu advises the students to notice the variety of smells in the park and emphasizes respecting all the living creatures and observing them without disturbing. As the children were exploring the park, right? तो वहां पर उनको इतनी वाइड डाइवर्सिटी मिली ऑफ प्लांट्स ऑफ एनिमल्स. प्लांट्स के जो प्लांट्स है उनकी डिफरेंट डिफरेंट स्मेल्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स है. सिमिलरली एनिमल्स के जो एट्रीब्यूट्स है, जो क्वालिटीज है, वो डिफरेंट डिफरेंट है, राइट? Maniram Chacha tells the students to not only observe different plants and animals but also to carefully listen to different sounds. So animals जो है वो अपने sounds के basis पर भी diversified है. ठीक है? So the student come across a variety of plants including grasses, bushes and large trees. They also observe a variety of birds sitting on the branches of trees, butterflies moving from flower to flower and monkeys jumping from one tree to another. They record their observation in the notebooks and discuss them with Dr. Raghu and Maniram Chacha. तो ये एक स्टोरी है जिसके अंदर बच्चे जो है नेचर वॉक पे जाते हैं और डिस्कवर करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो कितने डाइवर्सिफाइड है, वो कितने बेसिस पर डिफरेंशिएट हो सकते हैं. ठीक है. So the students can hear the chirping of birds. Dr. Raghu informs that each bird has a unique chirp and this is an example of diversity in nature. तो ये एक diversity in nature की example है कि different birds जो है वो उनकी different sound है, वो different तरीके से chirp करते हैं. Like sparrows की जो chirping होगी वो crow से different होगी. So on the basis of sound also हम crow और sparrow को differentiate कर सकते हैं. ठीक है. Dr. Raghu requests Maniram Chacha to mimic calls of some birds. Maniram Chacha mimics different bird calls. The student enthusiastically start copying him. Have you ever observed different plants and animals around you? Share and discuss your observation with your friends and teachers. अब आप लोग पार्क में जाते हो, आप देखते हो वहां पे कितने तरह के प्लांट्स है. कुछ प्लांट्स आपके हाइट जितने होंगे, कुछ प्लांट्स आपसे बहुत टॉल होंगे, कुछ प्लांट्स बहुत नीचे होंगे, नॉट इवन टिल योर नीज. ठीक है. फिर कुछ प्लांट्स के जो लीव्स है वो अलग होंगे, फिर फ्लावर्स उनके डिफरेंट तरीके के होंगे, डिफरेंट तरीके के फ्रूट्स होंगे उन पे. सिमिलरली एनिमल्स भी डाइवर्सिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ द साउंड. काउ जो है वो डॉग से अलग है, डॉग जो है वो कैट से अलग है ऑन द बेसिस ऑफ साउंड. फिर ऑन द बेसिस ऑफ द फूड दे ईट, राइट? कहाँ रहते हैं, वो कौन से रीजन को बिलोंग करता है. तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है जिसके बेसिस पे हम प्लांट्स और एनिमल्स को, डाइवर्सिफाइड एनिमल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है. So plan a nature walk with your teacher to a park or nearby forest. While on the nature walk, observe different plants, insects, birds, and animals. Also note that the weather condition, whether it is hot, cold, windy, and so on. So जब आप एक nature walk पे जाते हो, either with your teachers or with your parents, you will see that there are different types of plants, insects, birds, and animals. Right? So इट्स अ वेरी फन एक्टिविटी जिसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों को, लाइक डिफरेंट डिफरेंट फॉलन लीव्स को या फ्लावर्स को यू कैन कलेक्ट देम और उनको स्क्रैप बुक उसकी क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. सो नाउ दिस टेबल, अब ये जो टेबल है ये आपके बुक में कंप्लीट नहीं है. ये जो ब्लू कलर का पार्ट है
दिस इज एडेड एक्स्ट्रा, ये थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ लोकल नेम ऑफ द प्लांट, कॉमन ग्रास, ठीक है। कॉमन ग्रास जो ग्रास नॉर्मली उगती है, दैट इज सॉफ्ट एंड थिन, राइट। लीव्स की जो शेप होती है, अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स, एक सिंगल लीफ जो होता है वो ग्रो होता है ऑल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम। ऑब्वियसली कॉमन ग्रास जो होती है, जो आपकी ग्रास होती है, ठीक है, और इनके ग्रीन लीव्स होते हैं। अगर मैं तुलसी की बात करूँ, तुलसी प्लांट की जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है, थिन होती है। इसके जो लीव्स होते हैं, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ लीव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब एक स्टेम होगी और उनके ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शंस में लीव्स होंगे, और इसके जो फ्लावर्स होंगे वो पिंकिश पर्पल कलर के होंगे। अगर मैं हिबिस्कस प्लांट की बात करूँ, तो हिबिस्कस प्लांट का स्टेम जो है वो हार्ड होगा। इसके जो लीव्स होंगे वो होंगे सिंपल ओवल हार्ड लीव्स, जिनकी पॉइंटेड टिप्स होंगी। फ्लावर्स ऑब्वियसली हिबिस्कस फ्लावर्स जो होते हैं वो लार्ज रेड कलर के होते हैं, ठीक है। और इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि इट अट्रैक्ट्स बीज एंड बटरफ्लाइज। आप देखोगे कि हिबिस्कस के पेड़ में बहुत ज्यादा हनी बीज होती है। मूविंग ऑन टू नीम, नीम की अगेन जो स्टेम होती है वो होती है हार्ड और थिक, और इसके अंदर कंपाउंड लीव्स होते हैं टू अदर एजेस, मतलब सॉर्ट ऑफ एक स्टेम है और उसके एक ही साइड पे जो है वो लीव्स है सारे। फ्लावर्स इसके जो होते हैं वो होते हैं स्मॉल वाइट, एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशन में लीव्स विद स्मूथ सरफेस। तो नीम के जो लीव्स होते हैं उनका सरफेस जो है वो बहुत स्मूथ होता है। एनी अदर, सो इफ यू टॉक अबाउट मैरीगोल्ड प्लांट, मैरीगोल्ड प्लांट की जो स्टेम होती है वो होती है सॉफ्ट एंड थिन, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही थिन स्टेम होती है उसकी। उसके लीव जो होते हैं वो होते हैं स्मॉल नैरो एंड डीपली डिवाइडेड लीव्स। जो आपके जो मैरीगोल्ड के लीव्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और वो बहुत ही पतले पतले से होते हैं, ठीक है। और डीपली डिवाइडेड लीव्स होते हैं, मतलब ये आपका जो लीफ होगा उसके बीच में जो मिड कलर की मिड वेन होगी वो बहुत ज्यादा डीप होगी, राइट, इनग्रेव्ड बहुत डीप होगी। फ्लावर्स येलो ऑरेंज कलर के हैं, और ऑब्जर्वेशन इसकी इसकी स्ट्रॉन्ग सेंट होती है एंड इज यूज्ड इन गार्लैंड्स। आप देखोगे कि मैरीगोल्ड की मालाएं जो है वो भगवान जी को भी चढ़ती है, ठीक है। So what similarities and differences did you find among the plants that you observed? अब हमने इतने सारे plants जो है वो observe किए, हमने सिर्फ 5 डिस्कस किए हैं, बट एक्चुअल में देर आर थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स आउट देयर ऑन अर्थ, ठीक है। और इसी तरह से हम प्लांट्स को डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम कॉमन ग्रास और तुलसी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम, ऑन द बेसिस ऑफ लीव्स, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर्स, ऑन द बेसिस ऑफ एनी अदर फीचर, राइट। तो इसी तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ना तो प्लांट्स का कोई एंड है, टाइप ऑफ प्लांट्स का एंड है, और ना ही एट्रीब्यूट्स का, ठीक है। Now you must have observed that plants have a variety of features, like कुछ plants tall या short होंगे, उनकी hard या soft stem होगी, leaves की जो shapes होंगी वो different होंगी, उनकी arrangement जो है वो stem पे वो different होगी, flowers varying in color, shape and scent, ठीक है। flowers different color की होगी, different shape की होंगी, उनकी different smell होगी, ठीक है। Now create a list of animals you observed during this walk or from your previous experiences। अब हम आते हैं animals को differentiate करने में। हमने 4 तरह के एनिमल्स लिए, क्रो एंड काउ एंड फिश, ठीक है। क्रो कहाँ रहता है? क्रो लिव्स ऑन ट्रीज। फूड क्या खाता है? इट ईट्स इंसेक्ट्स, राइट। और द वे दे मूव, दे फ्लाई और दे वॉक, राइट, एंड कैरिंग a twig in its beak. So this is another observation. Moving on to the ant, ant जो है वो soil में रहते हैं, they live deep inside the soil. क्या खाते हैं वो? They eat leaves, seeds and insects, और the way they move around, it walks and it has 6 legs. गाँव पे आते हैं तो गाँव जो है वो रहता है फार्म शेड पे या ग्रास लैंड पे, ग्रास एरियाज पे, ठीक है। और खाता क्या है? ग्रासेस एंड लीव्स, एंड द वे दे वॉक अराउंड इज इट सिंपली वॉक्स। और एनी अदर ऑब्जर्वेशन, इट्स च्यू कट। कट क्या होता है कि जब जो काऊ है, काऊ क्या करते हैं, जब काऊ को कुछ खाना खिलाया जाता है तो जब वो अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं वो वापस अपने मुंह में लेके उसको वापस डाइजेस्ट करती है, ठीक है। सो ये साइकिल चलता है, दैट इज कॉल्ड कर्ड। और फिर आते हैं फिश। फिश जो है वो कहाँ रहती है? वो रहती है पॉन्ड में, एंड व्हाट दे डू ईट, दे ईट स्मॉल प्लांट्स, इंसेक्ट्स। द वे दे मूव अराउंड, इट स्विम्स एंड इट हैज फिन्स एंड गिल्स। सो ऐसे भी हम एनिमल्स को डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम एनिमल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कहाँ रहते हैं, वो क्या खाते हैं, वो कैसे घूमते हैं, और क्या उनके और फीचर्स हैं, ठीक है। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द एनिमल्स दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड इन टेबल 2.2? You have observed that some animals live on land while others live on trees. Birds live on trees, fish live in water, and some animals like frogs live on land as well as in water. तो ऐसे हम animals को बोलते हैं amphibians. Animals consume a diverse range of food and exhibit a variety of movements.
तो ये बेसिकली इस पैराग्राफ में बात हो रही है डाइवर्सिफिकेशन इन एनिमल्स की, कि कुछ एनिमल्स जो है वो लैंड में रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ कुछ खाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ किसी और तरीके से चलते हैं, किसी कोई और रीजन में रहते हैं, राइट? तो देयर इज diversity among animals as well. Sketch the plant and animals observed by you in your notebook or prepare a scrapbook with leaves, flowers, or different plants and feathers from animals. Write all the details you have gathered about. While traveling to and from school, observe your surroundings and look out for variety of plants and animals. Add the name of any plant or animal that you have not listed before in table 2.1 and 2.2. So you can perform all these activities ताकि आपका जो chapter है वो और ज़्यादा interesting बने और आपको और ज़्यादा curiosity आए. You know, when you step out in the real world or in the practical world, आप देखोगे कि actually जो चीज़ें हैं हमारी life में वो हमारी सोच से बहुत ज़्यादा है. जब आप प्लांट स्टडी करने जाओगे या जब आप एनिमल स्टडी करने जाओगे, आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं होगी, राइट? Moving on to, so close your eyes for 30 seconds and think of one plant and one animal that you have closely observed and appreciated very much. तो हम एक plant और एक animal को अपने दिमाग में लेते हैं, ठीक है? Now each one of you can draw the plant and animal that you have thought of on the blackboard. Any plant or any animal, for example, plant आपने सोचा hibiscus tree और animal आपने सोचा fish, ठीक है? So you can simply draw those things on the blackboard, ठीक है? What are your observation about the various plants and animals that have been drawn? अब आप देखोगे कि अगर आपके 30 स्टूडेंट्स की क्लास है तो 30 के 30 बच्चों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स बनाए होंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर नॉलेज और डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ठीक है? तो आप बेसिकली उन ड्रॉ चीजों को जो ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ हो रखी है उसके बीच में भी डिफरेंशिएट जो है वो बहुत इजीली कर सकोगे और देखोगे कि हाउ द थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट? आप देखोगे कि आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों को जो है वो डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फीचर्स. आप एनिमल्स को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ द फूड दे ईट, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उनका क्या रोल है एंड एनीथिंग, ठीक है? How many different plants and animals did the entire class draw on the blackboard? Do you think that there may be more varieties of plants and animals other than those drawn on the board? So there can be thousands or lakhs or maybe a lot of plants and animals not even explored yet जो हमारे अर्थ में है presently, ठीक है? So the variety of plants and animals found in a particular region contributes to the biodiversity of that region. So ये जो है ये 1 मार्क के लिए important है. किसी भी रीजन में किस तरह के प्लांट्स है और किस तरह के एनिमल्स है उन सबको मिलाकर अगर हम बात करें so that is called the biodiversity, right? Each member in the biodiversity of a region has different role to play. अगर आप एक biodiversity की बात करो, एक biodiversity क्या है? It is an ecosystem. एक particular ecosystem, ठीक है? उस ecosystem में हर member का एक अपना role होता है. For example, trees जो है वो shelter provide करते हैं, food provide करते हैं to birds and other animals. Similarly, animals जो है वो help करते हैं in spreading seeds. जब वो fruit खा लेते हैं तो जब वो सीड को बाहर फेंक दे तो उस सीड से न्यू प्लांट ग्रो होता है. सो दिस इज हाउ द सीड्स गेट स्प्रेड, ठीक है? सो कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जांपल? दिस शोज दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. तो ऐसी मल्टीपल एग्जांपल्स है जिसके अंदर हम बता सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो डिपेंडेंट है ऑन ईच अदर. अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूँ तो मैं एग्जांपल की बात कर रही हूँ बीज एंड फ्लावरिंग प्लांट्स की, कि जैसे ट्रीज जो है वो बर्ड्स एंड एनिमल्स को शेल्टर देते हैं. सिमिलरली वी टॉक अबाउट बीज एंड फ्लावरिंग प्लांट्स. बीज क्या होता है कि बीज जो है वो फ्लावर को विजिट करते हैं टू कलेक्ट नेक्टर, ठीक है? नेक्टर क्या है? उनका फूड है. एंड इन डूइंग सो वो पोलन ग्रेन्स जो है वो पिक करते हैं. हमने पॉलिनेशन जो है वो पढ़ा हुआ है कि जो हनी बीज है जब वो एक फ्लावर पे नेक्टर लेने जाते हैं, ठीक है? तो उस टाइम पे उनकी बॉडी के साथ जो है वो पोलन ग्रेन्स जो है वो लग जाते हैं और जब वो फ्लाई करते हैं नेक्स्ट फ्लावर में तो वो पोलन ग्रेन्स जो है वो नेक्स्ट फ्लावर में ट्रांसफर हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक है? और इस प्रोसेस की हेल्प से प्लांट जो है वो अपने खुद के सीड्स एंड फ्रूट्स जो है वो बना पाता है, राइट? सो फ्लावर्स गेट्स पॉलिनेटेड विद द हेल्प ऑफ बीज हेल्प. तो फ्लावर्स जो है वो पॉलिनेट हो जाते हैं विद द बीज हेल्प और बी को क्या मिल जाता है? फूड. बी को फूड मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर एंड पोलन फ्रॉम द फ्लावर. सो इसमें से कोई भी टास्क जो है वो अलोन कंप्लीट नहीं हो सकता था. तो दोनों के लिए इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए यू नीड बोथ हनी बीज एंड वेल एज द फ्लावर्स. So this is a perfect example of how plants and animals are dependent upon each other. So this is one extra example. Moving on to litters group. So collect pictures of various
other plants and animals, cut their pictures from old magazines, newspapers, charts, and other sources. Paste each of these pictures on different cards. Divide your class in groups of 5 to 6 students each. Pull the cards prepared by the students in your group. Observe various features of plants and animals shown on the cards. Recall the features of plants and animals that you have listed in table 2.1 and 2.2 and group them on the basis of common features. अच्छा अब इसके अंदर क्या बोल रहा है अगर मैं टेबल की बात करूं तो इसके अंदर ऐसे बहुत सारी चीज होंगे जो इसी कैटेगरी में बिलोंग करेंगे। जैसे मैंने नेम ऑफ द एनिमल लिखा क्रो और प्लेस वेयर दे लिव लिखा ट्री। ठीक है, तो इसके बेसिस पे मैं और एनिमल्स भी लिस्ट कर सकती हूँ, जैसे स्पैरो हो गया, स्पैरो भी वेयर डू दे लिव ऑन ट्री। उसके अलावा कोई और बर्ड हो गया, पिजन हो गया, ठीक है, दैट आल्सो लिव ऑन द ट्रीज। तो इस तरह से आप सिमिलैरिटी भी निकाल सकते हो चीजों के बीच में। ठीक है, सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट काउ, काउ जो है वो ग्रास लैंड में रहता है और द फार्म शेड, और वो खाता क्या है, ग्रासेस एंड लीव्स। सिमिलरली इज द केस ऑफ बफेलो के, बफेलो के भी यही एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, सो देयर इज सिमिलैरिटी बिटवीन द काउ एंड द बफेलो। ठीक है, so recall the features of plants and animals that you have listed and group them on the basis of common features. So you can easily group things on the basis of common features also. इस ये भी बहुत helpful है। Yeah. So you will be surprised to see that bases used by different groups may vary. अब जो bases जो suppose करो आपके 30 students के class में I have made 10 groups of 3 students each. अब हर group का आप देखोगे यू वुड बी सरप्राइज कि हर ग्रुप का तरीका जो होगा वो अलग होगा। हर ग्रुप का जो फीचर होगा फॉर सिमिलैरिटी एंड फॉर डिफरेंसेस वो अलग होगा। एक ग्रुप जो होगा वो सिमिलैरिटी निकालेगा ऑन द बेसिस ऑफ वेयर दे लिव और द फूड दे ईट। दूसरा जो है वो सिमिलैरिटी निकालेगा ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स और ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स। ठीक है, सो डिफरेंट स्टूडेंट्स माइट हैव चोजन डिफरेंट कॉमन फीचर्स फॉर द ग्रुप grouping. For example, some students may have chosen the height of plants as the basis for grouping, while others have chosen presence or absence of flowers as the basis of grouping of plants. मतलब हर एक ग्रुप का एक अगर स्टूडेंट ने प्लांट्स के बीच में डिफरेंशिएटर सिमिलैरिटी निकालने की कोशिश की है तो उनका जो बेसिस होगा वो अलग होगा। राइट, उनके जो एट्रीब्यूट्स और फीचर्स जो उन्होंने चूज किए होंगे वो अलग होएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपके क्लास में 10 ग्रुप्स बने तो 10 के 10 के बेसिस और फीचर्स अलग होंगे, बट हाँ सबके सेम भी नहीं होंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू so some possible criteria क्या होता है, presence या absence of flowers, hard या soft stem, eating habits of animals, place they live। तो ये यार कुछ possible criteria जिसके basis पे आप plants और animals को जो है वो group कर सकते हो। ठीक है, you may have grouped animals based on varied features such as what they eat, where they live, what color they are and how they move। what is the importance of grouping? grouping की क्या important है, importance है। ठीक है, grouping क्या करता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को इजी बना देता है बेसिस ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ठीक है, ग्रुपिंग मेक्स इट इजियर, तो ये इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए। ग्रुपिंग मेक्स इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ठीक है, जब आप चीजों को ग्रुप कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने क्रो, पिजन और स्पैरो को एक ग्रुप में डाल दिया बिकॉज दे फ्लाई, तो उनके बीच में स्टडी करना भी आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप पिजन की स्टडी अलग करोगे, क्रो की अलग करोगे, स्पैरो की अलग करोगे, तो आपको बार बार एक चीज बार बार जो है वो रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, सो यू विल लर्न मोर अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग इन आवर डेली लाइव्स इन चैप्टर मटेरियल्स अराउंड अस। Moving on to how to group plants. You have noticed that plants show variation in the features related to stems, leaves, flowers and more. अब जो plants हैं, आप देखोगे कि बहुत ही variety के होते हैं. Variety in terms of stems, variety in terms of leaves, variety in terms of flowers और more. उसके अलावा stem की जो thickness होएगी, जैसे stem की जो thickness होएगी या stem की जो height होएगी या stem की जो hardness होएगी, वो different plants में different होएगी। उसके अलावा लीव्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के होंगे, कलर के होंगे, साइज के होंगे, अरेंजमेंट के होंगे। तो ये सारा जो है ये एग्जाम्पल है बेसिकली कि डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स में एक्चुअली क्या है। ठीक है, our प्लांट्स जो है वो डाइवर्सिफाइड क्यों है। You might have also learned in earlier classes that plants can be grouped in herbs, shrubs and trees। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, जिसके अंदर आपका जो प्लांट्स है आप उनको ग्रुप कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ herbs, shrubs and trees based on their heights and types। ये सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं बिफोर द एक्टिविटी, हर्ब क्या होता है।
हर्ब जो होता है, हर्ब की जो हाइट होती है वो बहुत शॉर्ट होती है। इसकी स्टेम जो होती है वो सॉफ्ट होती है, ग्रीन होती है और थिन होती है। एग्जाम्पल टोमेटो, व्हीट, आपने देखा होगा व्हीट के खेत, वो बहुत छोटे छोटे बहुत ही ग्राउंड लेवल के प्लांट्स होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट स्टेम होती है उनकी, ठीक है, मतलब आप इजीली उनको प्लक आउट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप श्रब की बात करो तो श्रब की हाइट जो होती है वो मीडियम होती है, ठीक है। मीडियम हाइटेड की होते हैं और इनकी स्टेम जो होती है वो हार्ड होती है, वुडी होती है और ब्रांचेस जो होते हैं वो क्लोज टू द ग्राउंड होते हैं, मतलब ब्रांचेस जो है वो बहुत पास होते हैं ग्राउंड के। फॉर एग्जाम्पल मैं रोज की बात करूं, अगर आप रोज प्लांट देखोगे तो उसकी हाइट भी मीडियम होगी, ठीक है। उसके अलावा उसकी स्टेम जो होगी वो हार्ड होगी, वुडी होगी, मतलब वो लगे होंगे, आपने देखा होगा वो तीले लगे होते हैं उसके साथ, ठीक है। और इसके जो ब्रांचेस होंगे इट वुड बी वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाइट में नहीं होता, तो इसीलिए इनके जो ब्रांचेस होंगे इट वुड बी आल्सो वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। अगर मैं ट्री की बात करूँ, ट्री हो गए बड़े बड़े ट्रीज लाइक बनियन ट्री और नीम ट्री और बैंगो ट्री, तो ये बहुत टॉल होते हैं, ठीक है। ट्री की स्टेम जो होती है वो होती है हार्ड, थिक और वुडी। इसकी हार्ड, थिक और वुडी स्टेम होती है। नॉर्मल अगर आप एक ट्री देखो तो उसकी स्टेम कैसे होती है, इट इज हार्ड, इट इज ऑफ ब्राउन कलर, थिक, वुडी। ब्रांचेस जो होते हैं वो ग्राउंड लेवल से बहुत ऊपर होते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द क्लाइंबर, अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है, ठीक है। उनकी स्टेम इतनी वीक होती है कि उनको सहारा चाहिए होता है बढ़ने का। दे नीड अ पोल और अ फेंस और एनी अनदर प्लांट भी क्लाइंब, क्लाइंब मतलब ऊपर को जाना, ठीक है। तो दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब, क्योंकि उनकी स्टेम जो होती है वो बहुत ज्यादा वीक होती है, ठीक है, जैसे मनी प्लांट। और क्रीपर क्या होता है, क्रीपर जो होता है वो एक सर्टेन केस में हैवी होता है, मतलब कि वो ऊपर को नहीं जा सकता, इट हैज टू क्रीप ऑन द फ्लोर, ठीक है, लाइक दिस। दिस इज द क्लाइंबर, ये जो आप देख रहे हो, दिस इज द क्लाइंबर, ठीक है। वेट अ सेकेंड। ये आप अगर मैं बात करूं, ये आपका क्लाइंबर है क्योंकि ये सहारा लेके ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। और ये ग्राउंड पे क्रीप कर रहा है, सो दिस इज द क्रीप, ठीक है। क्रीपर के जो स्टेम होती है वो होती है वीक सॉफ्ट स्टेम, स्टेम जो होती है वो स्प्रेड होती है और क्रीप करती है अलोंग विद द ग्राउंड। तो ये ऊपर को नहीं जाता, ये इनफैक्ट ये आपके ग्राउंड लेवल पे जो है वो ग्रो करता है। मूविंग ऑन टू एग्जांपल, जैसे वाटरमेलन, वाटरमेलन का जो प्लांट होता है इट इज आल्सो क्रीपर, क्योंकि वाटरमेलन इटसेल्फ इतना हेवी फ्रूट है कि वो प्लांट ऊपर को जा ही नहीं सकता, इट हैज टू क्रीप ओवर द फ्लोर, ठीक है। अब इसके की डिफरेंस क्या है, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज जो है वो मेनली हाइट के बेसिस पे उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, या उनकी स्टेम कितनी हार्ड है कितनी वुडी है उस बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हो, और उनके ब्रांचेस कहाँ से स्टार्ट होता है उस बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो ये सब आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। क्लाइंबर्स और क्रीपर्स को ऑन द अदर हैंड दोनों की वीक स्टेम्स होती है, लेकिन आप कैसे उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो कि क्लाइंबर जो है वो ऊपर को जाता है विद सपोर्ट एंड क्रीपर जो है वो ग्राउंड के ऊपर जो है वो स्प्रेड करता है। सो दिस इज योर हर्ब, श्रब, ट्री, क्लाइंबर एंड क्रीपर, और इन सबके बीच में आप डिफरेंशिएट जो है वो इजीली कर सकते हो, ठीक है। So you must have noticed that plants to अच्छा ये तो हो गया ना, so let us go on a nature walk again for some more interesting observation. Look closely at the height of different plants. Are these plants shorter than you, as tall as you or taller than you? तो कुछ जो जो तुमसे शॉर्ट होंगे वो तो तुम्हारे आगे हर्ब्स, जो एज टॉल एज यू होंगे मतलब वो मीडियम हाइटेड, अब दोज आर श्रब्स, और जो टॉलर होंगे तुमसे वो हो गए ट्रीज। इज द स्टेम ब्राउन और ग्रीन, तो जो हर्ब की स्टेम होती है वो ग्रीन होती है, राइट। जो ट्रीज की स्टेम होती है और जो श्रब्स की स्टेम होती है वो ब्राउन होती है। टच एंड फील द स्टेम्स एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली, तो जब हम उनको जेंटली बेंड करने की कोशिश करोगे, ट्री की तो कर ही नहीं पाओगे, दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। उसके अलावा जब आप श्रब की करोगे तो श्रब की आप एक सर्टेन पॉइंट तक आप कर भी लोगे लेकिन वो टूट जाएगी और आप उसको कर नहीं पाओगे प्रॉपर्ली, और उसके ऊपर कांटे भी लगे होते हैं, ठीक है। एंड जो हर्ब्स होते हैं वो बहुत स्टिफ होते हैं, मतलब बहुत ही ग्रीन कलर के होते हैं, एंड इट इज वेरी इजी टू ब्रेक, ठीक है। उसके अलावा तुम ऑब्जर्व करोगे ब्रांचेस ऑफ द प्लांट्स कहाँ से राइज होती है, अगर तो वो क्लोज टू द ग्राउंड है दैट इज योर हर्ब, हायर अपॉन द स्टेम है सो दैट इज योर श्रब, और अगर बहुत ऊंची है ग्राउंड लेवल से सो दैट इज योर ट्री, ठीक है। अगर आप अब इस यहाँ पे टेबल में बात करें तो अगर आप मैंगो ट्री की बात करो, मैंगो इज एक्चुअली ट्री, तो इसीलिए इसकी हाइट बहुत टॉल होगी, इसकी नेचर ऑफ स्टेम बहुत ब्राउन होगी, हार्ड होगी, थिक होगी, और इनकी ब्रांचेस होंगी वो बहुत ऊपर होंगी ग्राउंड लेवल से, सो इट इज अ ट्री। अगर आप रोज की बात करो तो रोज एक मीडियम हाइटेड है, सो इट इज अ श्रब, क्योंकि इसकी जो स्टेम होगी वो ब्राउन होगी, हार्ड होगी लेकिन थिन होगी, और इसके जो
ब्रांचेस होंगी इट वुड बी वेरी क्लोज टू द ग्राउंड लेवल, और टोमेटो जो होएगा उसकी हाइट बहुत शॉर्ट होएगी, उसकी स्टेम भी ग्रीन होएगी, टेंडर होएगी, ठीक है, और थिन होएगी, एंड इट वुड बी आल्सो क्लोज टू द ग्राउंड, एंड दैट इज व्हाई इट इज क्लासिफाइड एज हर्ब। तो ये जो है ये इजीली आप कर सकते हो, इसको समझ सकते हो, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। अब हम बात करते हैं व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व अमंग herbs, shrubs and trees? How can you group plants as herbs, shrubs and trees based on the data entered in 2.3? तो इस बेसिस पे आप इजीली बता सकते हो कि कौन सा ट्री है, मतलब वो बहुत टॉल हाइटेड है, उनके ब्रांचेस ग्राउंड लेवल से बहुत ऊपर है, और उनकी स्टेम जो है वो ब्राउन, हार्ड और थिक है, सो दैट इज अ ट्री। अगर आप एक श्रब की बात करो तो श्रब जो होता है वो मीडियम हाइटेड का होता है, और वो ब्राउन कलर का उसका स्टेम होता है, स्टेम जो होता है वो हार्ड होता है, लेकिन एक्चुअली में इट्स वेरी थिन, ब्राउन होता है, हार्ड होता है, लेकिन बहुत थिन होता है, मतलब टूट जाएगा इजीली, ठीक है, एंड इट इज वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, जो ब्रांचेस होते हैं इट इज वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। एंड इफ आई टॉक अबाउट टोमेटो, टोमेटो की हाइट जो होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, ठीक है, इसकी नेचर ऑफ स्टेम क्या है कि ग्रीन कलर की स्टेम होती है, बहुत थिन स्टेम होती है, एंड इट इज अ हर्ब। So some plants grow really tall and have hard, thick, brown and woody stems. So here we are talking about trees. Their branches typically start higher up on the stem and away from the ground. So these plants are called trees. So ये आ गई तुम्हारी definition trees की, कि इनके branches जो होते हैं वो ground level से बहुत ऊपर होते हैं, ठीक है, और इनका जो stem होता है वो बहुत ही hard होता है, thick होता है, brown होता है, और बहुत ही woody stem होता है, if you consider this example, ठीक है। सो सम प्लांट्स जो होते हैं वो एज टॉल एज ट्रीज नहीं होते, लेकिन उनकी ब्राउन वुडी स्टेम्स होती है, और उनके जो ब्रांचेस होते हैं इट इज वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, उनकी स्टेम्स जो है वो इतनी हार्ड हार्ड होती है, लेकिन इतनी थिक नहीं होती एज दैट ऑफ अ ट्री, और इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, श्रब। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट के व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हर्ब्स एंड श्रब्स, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल रोज प्लांट, और जो प्लांट्स जो टिपिकली बहुत स्मॉल होते हैं विद अ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, बहुत ही टेंडर स्टेम होती है उनकी, तो उनको हम कहते हैं हर्ब्स। फॉर एग्जांपल योर टोमेटो प्लांट। सो ये थ्री पैराग्राफ्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके अंदर ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स के बीच में बेसिकली डिफरेंस भी बताया गया है, क्या होते हैं वो भी बताया गया है, ठीक है। अगेन टॉकिंग अबाउट क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनकी बहुत ही वीक स्टेम होती है, और उनको सपोर्ट चाहिए होता है टू क्लाइंब एंड ग्रो, और उन्हें हम कहते हैं क्लाइंबर्स। और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो क्रीप करते हैं अलोंग द ग्राउंड, और उनको हम कहते हैं creepers. So this is the introduction of what is trees, shrubs, herbs, climbers and creepers. ठीक है, तो ये हो गया differentiating plants on the basis of their stem, or on the basis of their height, or on the basis of their, you know, यहाँ पे attributes लिखे हुए हैं ना, on the basis of the appearance of branches, nature of stem और height। तो ये तीन attributes के basis पे हमने plants को जो है वो differentiate कर दिया, and they fall into one category. Let us compare. Look at the leaves of different plants collected by you during the nature walk. Do you notice any variation in the shape and structure of these leaves? अच्छा, अब आप leaves की बात करेंगे हम। तो leaves जो होंगे आप देखोगे कि leaves के जो pattern होंगे वो बहुत different होंगे। अगर आप एक नीम का लीफ पकड़ोगे, एक हिबिस्कस का लीफ पकड़ोगे, आप बनाना का लीफ पकड़ोगे, आप देखोगे कि उनके ऊपर जो वेन्स का डिजाइन, अच्छा वेन्स क्या होते हैं, जो थिन लाइंस होती है लीव्स में उसे हम कहते हैं वेन्स। ये जो थिन थिन लाइंस है तुम्हारे लीव्स में, लेट मी ड्रॉ फॉर यू, तो ये जो थिन थिन लाइंस है, ये वाली लाइंस, ठीक है, ये सब क्या है आपके वेन्स है, एंड द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। अब किस पैटर्न में जो है वो बनी हुई है, किस पैटर्न में है, दैट इज कॉल्ड वेनेशन, ठीक है। अब ये पैटर्न मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। जैसे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर पैटर्न नेट स्टाइल है, ऐसे नेट स्टाइल पैटर्न है, ठीक है। अगर आप ग्रास लीफ देखोगे तो इसके अंदर पैरेलल पैरेलल है, ठीक है, Let me show you. ठीक है, इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर आपकी जो वेन्स होंगी वो पैरेलल पैरेलल है, ठीक है, और इसके अंदर अगर आप देखोगे इस वेन्स जो है वो नेट स्टाइल है, ठीक है, ऐसे करके देखोगे तो, ठीक है। तो ये किस स्टाइल से आपकी जो वेन्स है लीव्स में उसे हम कहते हैं वेनेशन, ठीक है। अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं सबसे पहले, तो जो लाइंस आप लीफ पे देखते हो उन्हें हम कहते हैं वेन्स। वेन्स क्या करती है, कैरी करती है फूड एंड वाटर थ्रू द लीफ, और जो पैटर्न ये वेन्स फॉर्म करते हैं उन्हें हम कहते हैं वेनेशन। और वेनेशन जो होती है वो दो तरह की होती है, ये चीज आपको याद रखनी है, वेनेशन जो होती है वो दो तरह की होती है। फर्स्ट इज द रेटिकुलेट वेनेशन, सेकेंड इज द पैरेलल वेनेशन। बहुत बहुत इजी है। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है कि जिसके अंदर वेन्स जो है, वेन्स दिस वेन्स जो है वो क्रिस क्रॉस बनाती है या नेट लाइक पैटर्न बनाती है, ब्रांचिंग आउट फ्रॉम अ सेंट्रल मिडरिप। अच्छा ओके, अब अगर मैं बात करूं सेंट्रल मिडरिप, तो ये आपका जो बीच वाला पार्ट है, दिस इज योर सेंट्रल मिडरिप,
ठीक है? और इसके आसपास जो वेन्स निकल रही है, ये जितनी भी वेन्स है इसके आसपास, ये नेट लाइक पैटर्न बना रही है, आप देखोगे, या इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रिस क्रॉस। तो ये रेटिकुलेट वेनेशन है, दैट इज अराइजिंग फ्रॉम अ सिंगल मिडल। ठीक है? अगर मैं पैरेलल वेनेशन की बात करूँ, तो पैरेलल वेनेशन में वेन जो है वो पैरेलली रन करते हैं। ठीक है? ये थोड़े लाइंस इससे बाहर चले गए, बट मेक श्योर कि आपके अंदर ही हो। तो ये इसके अंदर जो है आप देखोगे कि वेन्स जो है वो पैरेलली रन कर रहे हैं। ठीक है? साइड बाय साइड फ्रॉम बेस टू टिप। तो ये बेस है, दिस इज योर बेस, और ये आपकी टिप है। ठीक है? ये क्या कर रहा है, बेस से टिप तक जा रहा है। ठीक है? सो दिस इज योर पैरेलल वेनेशन। अब इसके अंदर एग्जांपल क्या आती है तुम्हारी, ग्रास, बनाना के लीफ, मेज, मेज क्या होता है, कॉर्न, व्हीट या लेमन ग्रास। और रेटिकुलेट वेनेशन में आपके एग्जांपल्स क्या आती है, हिबिस्कस, नीम, मस्टर्ड, रोज एंड मैंगो लीव्स। तो मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। रेटिकुलेट वेनेशन एक ऐसा स्टाइल है या एक ऐसा पेयरेंस है जिसके अंदर जो है आपकी वेन्स का एक नेट लाइक पैटर्न बनता है या क्रिस क्रॉस पैटर्न बनता है। ठीक है? नेट लाइक या क्रिस क्रॉस, ये दो इसके हैं फॉर एक्सप्लेनेशन। ठीक है? क्रिस क्रॉस या नेट लाइक पैटर्न। ठीक है? एंड जो पैरेलल वेनेशन होती है, ये रन करती है साइड बाय साइड फ्रॉम बेस टू टिप, लाइक स्ट्रेट रेलवे लाइंस, बिल्कुल स्ट्रेट रेलवे लाइंस की तरह। ठीक है? Now, in some leaves, you can observe a net-like pattern or veins on both sides of a thick middle vein. So, this is ये क्या है, center वाला जो mid rib है, in your reticulate venation, that is a thick middle vein. ठीक है? और इस pattern को हम कहते हैं reticulate venation. For example, leaves of hibiscus exhibit reticulate venation. और कुछ leaves में जो आप देखोगे कि veins जो है वो parallelly run करते हैं, as in ग्रास लीफ। ठीक है? या बनाना प्लांट्स। ठीक है? पैरेलल वेनेशन होती है, मतलब वेन्स जो है वो रेलवे लाइंस की तरह बिल्कुल सीधी रन करती है। ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम रूट्स पे। So do you think that plants can be grouped on the basis of venation present in their leaves? Now let us try to explore roots of the plant. Do all the plants have roots? Are these roots similar? अगर अब मैं ये एक्सप्लेन करने से पहले बात करूंगे रूट्स क्या होता है। रूट्स एक ऐसा प्लांट का पार्ट है जो फर्मली उसको सॉइल के साथ रखता है, फर्मली प्लांट को होल्ड करता है सॉइल के साथ, और ऑल्सो सॉइल के जितने भी वाटर एंड मिनरल्स है उन्हें ऑब्जॉर्ब करके ऊपर ट्री तक पहुंचाता है। ठीक है? तो रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, रूट्स भी दो तरह की होती है, एक होती है टैप रूट और एक होती है फाइब्रस रूट। ठीक है? अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, टैप रूट में क्या होगा, एक सेंटर में एक मेन रूट होएगी। ठीक है? ये मेन रूट है, और इसके साइड में ये छोटी छोटी रूट्स निकली होंगी। ठीक है? ऐसे, ये जो निकली हुई है। ठीक है? साइड में इसके छोटे छोटे रूट्स निकली होगी, और एक यहाँ पे मेन रूट होगी। ठीक है? सो वन थिक मेन रूट जो है वो ग्रो करती है स्ट्रेट डाउन, यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रेट रूट होएगी जिसे हम कहेंगे मेन रूट। ठीक है? और इसके लेफ्ट और राइट साइड पे पूरा जो है वो छोटी छोटी रूट्स जो है वो ब्रांच आउट करेगी। सो दिस इज लाइक कैरेट। ये आप देखोगे तो कैरेट की डायग्राम बन रही है एक तरह से, ये मैंने सर्कल बनाया है, उस हिसाब से देखोगे तो ये कैरेट की डायग्राम बन रही है। सो टैप रूट इज लाइक अ कैरेट। ठीक है? और अगर आप फाइब्रस रूट की बात करो, तो फाइब्रस रूट में जो बंच ऑफ थिन रूट्स है, इसके अंदर कोई मेन रूट नहीं होती, इसके अंदर बंच ऑफ थिन रूट्स होती है जो सिमिलर साइज के होते हैं। आप इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर जो रूट्स होंगे वो सब सिमिलर साइज के होंगे। ठीक है? दैट इज ग्रोइंग आउट ऑफ द बेस ऑफ द स्टेम। तो ये क्या है, आपका बेस ऑफ द स्टेम है। यहाँ से जो है थिन थिन रूट्स जो है वो आप देखोगे निकल रही है बाहर। ठीक है? सो देर इज नो मेन सिंगल रूट, इसके अंदर कोई भी मेन सिंगल रूट जो है वो नहीं होती है, इसके अंदर जो रूट्स होती है वो सिमिलर साइज की होती है। ठीक है? ठीक है? टैप रूट एंड फाइब्रस रूट में, सो एग्जाम्पल इसका आ गया मस्टर्ड, हिबिस्कस, चिकपी, मैंगो, नीम, और इसका आ गया ग्रास, व्हीट, मेज, लेमन ग्रास एंड अनी। ठीक है? सो आई होप ये सबको समझ आ गया है। ठीक है? तो आई होप सबको ये समझ आ गया। ठीक है? अगर हम ऊपर आते हैं वापस से, सो visit an open area where wild herbs and grasses are growing. You may use small herbs for this exercise. Use a खुरपी और ट्रॉल। ट्रॉल क्या होता है, जो बेसिकली एक आती नहीं है, एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे आप गड्ढा खोदते हो, दैट इज कॉल्ड अ ट्रॉल और अ खुरपी। ठीक है? तो आप देखोगे
You may wet the soil and loosen it. So wash the roots with the water and observe them. तो जब आप roots को wash करोगे या उनको water से wash करोगे, अच्छे से clean करोगे, तो आप देखोगे जो आपने plants collect किए हैं, उनके roots जो है वो different different तरीके के जो है वो होंगे। वही मैंने बताया अभी आपको। सपोज द रूट्स ऑफ अ मस्टर्ड प्लांट इन फिगर 2.5 ये मस्टर्ड प्लांट है, ठीक है, और एक कॉमन ग्रास। आप देखोगे मस्टर्ड प्लांट में एक मेन रूट ग्रो हो रही है और उसके साथ साथ छोटी छोटी रूट्स जो है वो उससे बाहर निकल रही है, ठीक है। और फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या आएगा कि सिमिलर साइज ऑफ रूट्स जो होंगी वो ग्रो करेंगी एक दूसरे के साथ फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, ठीक है। तो यहाँ पर the roots of this plant consists of one main root, small side roots arising from it. इस root को हम कहते हैं, इस main root को हम कहते हैं टैप रूट, ठीक है। और एक और एग्जांपल अगर हम लेंगे, प्लांट हैविंग टैप रूट इज हिबिस्कस। तो आपने एक्टिविटी 2.1 अगर आप ऊपर ऊपर जाओगे तो आप देखोगे कि अगर आपने हिबिस्कस का वो पढ़ा होगा तो आप देखोगे इट इज आल्सो हैविंग अ टैप रूट, ठीक है। अब रूट्स ऑफ दिस प्लांट, अब जो नेक्स्ट है कॉमन ग्रास का प्लांट है, उसके अंदर जो रूट्स है इट इज लाइक अ बंच ऑफ सिमिलर साइज थिन रूट्स। जो थिन रूट्स है सिमिलर साइज की वो अराइज हो रही है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। इन रूट्स को हम कहते हैं फाइब्रस रूट्स, ठीक है। अब आते हैं हम एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन अ लीफ वेनेशन एंड रूट सिस्टम। अब ये बहुत इजी और बहुत सिंपल है, ठीक है। बिफोर एक्टिविटी 2.7 आपको ये चीज याद रखनी है कि जिस लीफ की रेटिकुलेट वेनेशन है, ठीक है, जिस लीफ की रेटिकुलेट वेनेशन है उसके अंदर टैप रूट सिस्टम ही होगा, ठीक है। आई रिपीट कि जिस भी प्लांट में लीफ की रेटिकुलेट वेनेशन है उसके अंदर टैप रूट सिस्टम ही होगा, और जिसके अंदर, जिस प्लांट में लीफ के अंदर पैरेलल वेनेशन है उसके अंदर फाइब्रस रूट सिस्टम ही होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल है चिकपी, हिबिस्कस, मस्टर्ड, और पैरेलल वेनेशन और फाइब्रस रूट सिस्टम का एग्जांपल है लेमन ग्रास, व्हीट, मेज एंड ग्रास। अब ये यूजुअली डाइकॉट प्लांट एंड मोनोकॉट प्लांट, ये मैं आगे कराऊंगी आपको। सबसे पहले हम, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट ऑफ द सेम प्लांट, हाउ डू वी फाइंड आउट। अब अगर आप देखोगे, ये कुछ मैंने एग्जांपल इस टेबल को फिल करने के लिए लिए। अगर आप लेमन ग्रास लोगे, लेमन ग्रास की जो लीफ वेनेशन होगी वो पैरेलल होगी। तो बेसिकली मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ कि अभी आपको पता नहीं चलेगा, अभी आप इतनी जल्दी इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे उस चीज को। तो आपने क्या करना है, आपने ये चीज याद रखनी है, बिकॉज ऑब्वियसली आपको नहीं पता हर प्लांट का लीफ, हमने कभी इतनी अच्छी तरह ऑब्जर्व नहीं किया। तो इट इज बेटर कि आप 4-5 एग्जाम्पल जो है ये क्रैम कर लो, ठीक है। सो नेम ऑफ द प्लांट है लेमन ग्रास। इसके अंदर लीफ वेनेशन जो होती है वो पैरेलल है। पैरेलल वेनेशन के अंदर जो रूट सिस्टम होगा दैट वुड बी ऑलवेज फाइब्रस रूट सिस्टम। अगर मैं मैरीगोल्ड प्लांट की बात करूँ तो इसके अंदर जो लीफ वेनेशन इट इज रेटिकुलेट, और रेटिकुलेट वेनेशन के केस में जो रूट सिस्टम होगा इट वुड बी ऑलवेज टैप रूट। अगर आप देखोगे पैरेलल फाइब्रस, इधर भी पैरेलल और इधर भी फाइब्रस, और इधर रेटिकुलेट, और ये तीनों जो है वो टैप रूट सिस्टम है। तो ये चीज आपने जो है वो याद रखनी है, ठीक है। Do you observe any relation between the leaf venation and types of roots? A Sadabahar plant has a tap root and its leaves have reticulate venation. Do other plants with reticulate venation have tap roots too? No. So the plant with the reticulate venation have tap roots only. Okay. So lemongrass on the other hand has fibrous roots and its leaves have parallel venation. So again मैं repeat करती हूँ कि जिन plant की leaves की parallel venation होगी it would be a fibrous root system always, और जिसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होगी इट वुड बी हैविंग टैप रूट सिस्टम ऑलवेज। तो ये यही इसने यहाँ पे बोला कि जनरली प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स व्हाइल दोस विद द पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट्स ऑलवेज, ठीक है। चिकपी चना इज अनदर एग्जांपल ऑफ प्लांट विद टैप रूट्स एंड रेटिकुलेट वेनेशन। So wheat is an example of plant with fibrous roots and parallel venation in its leaf. तो ये इस पैराग्राफ में आपको एग्जांपल्स आ गई दो, एक आ गई चिकपी की, एक आ गई wheat, ठीक है। डाइकॉट एंड मोनोकॉट सीड्स। अब मूविंग ऑन टू दो तरह के, अब हमने स्टेम के बेसिस पे कर लिया, ब्रांचेस के बेसिस पे कर लिया, उसके अलावा हमने लीफ के बेसिस पे कर लिया, उसके अलावा हमने रूट सिस्टम के बेसिस पे कर लिया। अब नेक्स्ट जो है डिफरेंशिएटिंग क्राइटेरिया है वो है सीड्स। बहुत ही सिंपल सी मैं आपको एक एक्टिविटी बताऊंगी। आप क्या करो, एक सीड लो, उसको वाटर के अंदर सोक करके रख दो फॉर अ कपल ऑफ डेज, ठीक है। और इसको जेंटली ना स्प्लिट कर दो, मतलब दो हाफ्स में उसको बांट दो। फिर देखो क्या है। अब देखो, एक डाइकॉट सीट और एक मोनोकॉट सीट है। अगर एक सीड जो है, अगर
अच्छा, अगर आप एक व्हाइट चने का दाना लोगे, एक व्हाइट चने का, आप देखोगे कि अगर आप उसको स्प्लिट करने की कोशिश करोगे, वो एग्जैक्टली टू हाफ्स में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर आप कॉर्न लोगे, कॉर्न कॉब में से अगर एक कॉर्न का पीस लोगे और उसको स्प्लिट करने की कोशिश करोगे, तो वो स्प्लिट नहीं होगा दो हाफ्स में। ठीक है। यही सिंपल है कि अगर एक सीड जो है वो दो हाफ्स में स्प्लिट हो रहा है, इट इज अ डाइकॉट सीड। और अगर एक सीड जो है वो स्प्लिट नहीं हो रहा है दो हाफ्स में, तो उसे हम कहते हैं मोनोकॉट सीड। डाइकॉट, डाई का मतलब है टू, मोनोकॉट में मोनो का मतलब है वन। ठीक है। Coming on to the explanation, तो splits into two equal parts called cotyledons। अब cotyledons क्या होते हैं? अगर आप एक चने का दाना लोगे, सपोज यही वाला मैं लेती हूँ, अगर मैं ये वाला लेती हूँ, तो मैंने ये चने का दाना लिया, ठीक है, और एग्जैक्टली मैंने इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। तो ये जो दो पार्ट्स में स्प्लिट हुआ है, इन दोनों को हम कहते हैं cotyledons। सो दिस इज वन cotyledon एंड दिस इज द सेकंड cotyledon। ठीक है। और इसके अंदर आपने कुछ भी स्प्लिट नहीं हुआ, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉटिलीडन है, सो इट इज कॉल्ड अ कॉटिलीडन। सो अगर आप एक सीड लोगे और अगर वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, एग्जैक्टली दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, अगर आप कोई भी चना लोगे, ब्लैक चने लोगे, व्हाइट चने लोगे, तो आप देखोगे वो एग्जैक्टली टू पार्ट्स में जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है। तो उन्हें हम कहते हैं डाइकॉट सीड्स, और जिसके अंदर सिर्फ एक कॉटिलीडन होता है, मतलब वो स्प्लिट नहीं हो सकता टू इक्वल हाफ में, तो उसे हम कहते हैं मोनो। ठीक है। प्लांट विथ सच सीड्स, अगर मैं बात करूं साइंस की लैंग्वेज में, कि जो प्लांट है जिनके ऐसे सीड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं डाइकोटिलीडन्स या डाइकॉट्स। ठीक है। डाइकोटिलीडन्स और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, डाइकॉट्स। और जिनका वन थिंग कॉटिलीडन होता है, वो स्प्लिट नहीं होते, उनको हम कहते हैं मोनोकॉटिलीडन्स या मोनो। सो दिस इज। नेक्स्ट आता है कि हमें पता चल गया है कि रूट और वेनेशन जो है वो कैसे रिलेटेड है। ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा है कि रूट और वेनेशन जो है वो कैसे रिलेटेड है। पैरेलल वेनेशन में हमेशा फाइब्रस रूट होएगी और रेटिकुलेट वेनेशन में हमेशा टैब रूट होएगा, ये हमें पता है। ठीक है। अब हाउ आर सीड्स, वेनेशन एंड रूट्स रिलेटेड? ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना कि अगर किसी सीड में दो कॉटिलीडन्स है, वो एक डाइकॉट प्लांट है। एक डाइकॉट प्लांट में हमेशा जो है वो टैप रूट होगा, और हमेशा उसके अंदर लीफ वेनेशन जो होगी वो रेटिकुलेट होगी। मतलब आप इतना समझ लो कि अगर एक प्लांट है, उसकी लीफ वेनेशन रेटिकुलेट है, उसके अंदर टैप रूट सिस्टम होगा और वो एक डाइकॉट प्लांट होगा। और अगर एक प्लांट में जो लीव्स की लीफ वेनेशन है वो पैरेलल है, तो उसका जो रूट टाइप होगा दैट वुड बी ऑलवेज फाइब्रस, और वो एक मोनोकॉट प्लांट होगा। ठीक है। इसकी एग्जांपल्स कर लो अच्छे से, चिकपी, मस्टर्ड, मैंगो, हिबिस्कस, और मेज, व्हीट, लेमन ग्रास, बनाना एंड ग्रास को मोनोकॉट प्लांट। तो दिस इज हाउ यू कैन ग्रुप। ठीक है। मतलब अगर आपको लीफ वेनेशन पता होगा किसी भी प्लांट का, तो आप इजीली उसका रूट टाइप और वो किस तरह का प्लांट है, मोनोकॉट और डाइकॉट, वो इजीली निकाल सकते हो। तो ये टेबल जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो यू शुड नो अबाउट दिस। Is there any relation between the seed of a plant, types of the root and leaf venation? Are all seeds similar? No, all seeds are not similar. ये हमने डिस्कस कर लिया। सीड जो है वो दो तरह के होते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। और हाँ, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द सीड ऑफ अ प्लांट, टाइप्स ऑफ द रूट एंड लीफ वेनेशन, जो हम ऊपर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ पे वही एग्जांपल है कि एक पानी लो, उसके अंदर चिकपी को सोक करो और उसके अंदर मे सीड्स को सोक करो फॉर 2 to 3 days। उसके बाद उसके सीड को उतारो और आप देखोगे कि चिकपी को जब आप तोड़ने की कोशिश करोगे, इट विल बी एग्जैक्टली स्प्लिट इनटू टू हाफ, और मेज जो है वो स्प्लिट नहीं होगा। ठीक है। So you would notice that chickpea seeds are split into two parts. So each part को हम क्या कहते हैं, cotyledon। तो this is these are the cotyledons। ठीक है। and plants जिनके दो cotyledons होते हैं उन्हें हम कहते हैं dicotyledons या dicots। और maize जो है उसके अंदर एक बहुत ही single thin cotyledon होता है। ठीक है। तो इसीलिए हम उन seeds को कहते हैं monocotyledons या monocots। So what relation do you observe among leaf venation, root types and number of cotyledons in the seed of a plant? तो dicot plants में हमने ये पढ़ा है कि अगर एक लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन है, तो उसके अंदर टैप रूट सिस्टम होगा और वो एक डाइकॉट प्लांट होगा। लेकिन अगर एक हम मोनोकॉट प्लांट की बात करें या एक प्लांट की बात करें जिसके अंदर पैरेलल वेनेशन है, तो लीव्स विद द पैरेलल वेनेशन, तो वो प्लांट के अंदर हमेशा फाइब्रस रूट सिस्टम होगा और वो एक मोनोकॉट प्लांट। ठीक है। So you have learned about some features used for grouping plants. Now let us explore the grouping of animals in more detail. तो ये जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर के रिलेटेड जितने भी नोट्स होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक जो होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। If you like this video, please do like, comment and subscribe, and make sure that you press the bell icon so that you don't miss any update. Thank you.